तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले, जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी, शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी, 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 स्पोर्ट्स इंडी। Hello, people. What's up? We are back again on Sports Indie Presents World of Sports, produced by Meeti Group. And again, हम बहुत सारे एपिसोड्स में स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट हम यूथ के लिए लेके आते हैं. एंड आज भी हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है. इट वुड बी अराउंड द चाइल्डहुड गेम्स जो हम बात करते हैं बट हम टीवी पे नहीं देख सकते. बट इसके लिए आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट. सो लेट्स वेलकम हिम. Our special guest for today is Mr. Bhushan Bhave sir, and he's the writer of the book Goental Paramparik Khel and also the principal of Vidya Prabodhini College of Commerce and Education, Goa. Thank you so much, sir, and welcome on our show. Welcome to you also, Vishal, and very nice Thank of you. yeah. Sir, I'm really very happy that you are here today, and it would be very interesting. Actually, in every episode we talk about different sports, and today like our topic is so unique that which is not been taken by many people. Like we'll talk about the childhood games. What is the benefits the child gets in his early age, because he doesn't know about much details about the sports which we have today in like today's generation. Sir, before that, just starting with the whole process or the whole topic, I just want to know your first basic question: how sports is like important in today's youth? Why? Like in the childhood. I'm not saying youth in the sense right now. So it's like in early age when a child is born and when he, there are so different types of games which he plays with his friends. What are the profit and what are the benefits of it when he, plays that? In fact, I would like to thank Sports Indie for giving me this platform to share my views regarding sports. First of all, let me be clear that I am not a sportsman. I am a writer, I am an author and translator by profession, and also basically a teacher. And now the principal heading an institution in Goa, a budding institution which gives education in commerce and BA BEd. But while writing so many books, I found that these traditional games that we used to play during our childhood also play an important role in the overall development of our personality, which I started with my own experience only, because if I had not got the opportunity to play these games in my childhood, maybe I would have become very eccentric. I would have become very egoistic. I would have become very, person who would like to be lonely. ऐसा बन जाता मैं यदि मैं नहीं खेलता बचपन में तो the entire answer of your question is lying in this only, that basically चाइल्डहुड में खेलना ये खुद का एक अनुभव है, हर एक ने वो लिया है. एटलीस्ट माय जनरेशन वाज वेरी लकी टू हैव इनफ स्पेस इन आवर विलेज टू प्ले सच गेम्स. In fact, the games were not requiring much space as such. They required space in your heart to play. And वो space हमारे ज़माने में रहता था. There was no careeristic approach among the parents also. So they used to allow us to go on the ground every day and play as much as we can. और हम उनकी डांट सुनते सुनते भी अपने घर नहीं लौटते थे. ये हमारे लिए एक मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड लक दैट आवर जनरेशन वाज हैविंग. इनफैक्ट मैंने बचपन में आई वुड लाइक टू शेयर अ थियरी विथ यू. Whether you will agree, whether the listeners will agree to that, I don't know.
ऐसी एक थियरी मैंने सुनी थी कि देर इज ऑलवेज एन आयरन, लोह जो है, जिसके लिए हम उसको ब्लड को लहू बोलते हैं. The blood is flowing in our body which contains Fe, that is iron. And this iron, when we play in the soil, when we get connected with the soil, there is a magnetic flux which gets developed between the iron in our body and the metals, especially the iron in the earth. और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये चुंबकीय शक्ति जो है, वो आपको धरतरी के साथ, पृथ्वी माता के साथ कनेक्ट करती है. This is the very age-old theory. Maybe I had heard it, read it during my 8th or 9th standard. But when I connect to this sports, मुझे ऐसा लगता है जो लोग, जो बच्चे मिट्टी में खेलते होंगे अभी भी, वो नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक बन जाते हैं लाइफ में, और वो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग तो होंगे ही, क्योंकि उनमें से वो स्वेट निकालने का, कैलोरीज बर्न करने का जो प्रक्रिया है वो चालू रहती है उसमें. हमारे वेदों में भी कहा गया है, पृथ्वो हम पृथ्व्याम, ये पृथ्वी के हम पुत्र है. तो ये पृथ्वी के साथ सतत नाता बनाने के लिए हमने मिट्टी में खेलना चाहिए. वी हैव टू प्ले इन द सॉइल. दैट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, एंड आई थिंक दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. बहुत अच्छा लगा सीरियसली. और ऐसा एक भी जगह नहीं था जहाँ पे मेरा डिसएग्री का पॉइंट आता है या तो फिर ऑडियंस का भी आएगा. सर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि चाइल्डहुड गेम्स जितना बेनिफिट्स होता है क्योंकि वो रूट से, नेचर से हमें उतना कनेक्ट करता है. तो जैसे हमारे बचपन में तो हम जैसे खेलते थे, लंगड़ी हो गया, गिल्ली डंडा हो गया. सो ये सर आपने भी सुनी होगी. एंड आपके हिसाब से ये जो छोटी छोटी गेम्स होती है जो हम बचपन से हम खेलते हैं, लाइक गिल्ली डंडा हो गया, लंगड़ी, जो भी हो, तो 3-4 गेम्स ऐसे आप ले लो, पर उससे बेनिफिट क्या होता है बच्चों को? मुझे 3 बेनिफिट खाली आप बता दो. जैसे क्योंकि जो ओलंपिक्स में खेली जाती है गेम्स, वो लोग यहाँ पे तो काउंट नहीं करेंगे ये छोटी छोटी गेम्स को, क्योंकि एक बच्चा तभी वो ट्रेनिंग ले रहा होता है, अपनी बॉडी को वो प्रैक्टिस दे रहा होता है कि स्पोर्ट्स में कैसे अपने आप को एक्टिव रखना है. सो ये जो छोटी छोटी गेम्स रहती है जो इनको रूट को बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाती है, गिल्ली डंडा हो गया, लंगड़ी हो गया, सो उसके 3 बेनिफिट्स मुझे जानने हैं आपसे, और उसके बारे में भी ये 3 गेम्स आपके बचपन में कैसे थे? डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है. और विशाल जी, मैं एक बात कहूँ, एक तो आज जब हम पेंडेमिक के पार्श्वभूमि पर ये बात कर रहे हैं यहाँ, I came to know after we faced this 1.5 year or 2 years of pandemics, and then we came to know that there is something called immunity in the body. और ये इम्यूनिटी जो है वो हमारे जनरेशन में, अब बार बार मैं ये हमारा जनरेशन बोल रहा हूँ तो किसी को लगे ये कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब ऐसा है कि जो हम आज 50s में है, 40s में है, तो उनकी जनरेशन का जो सिलसिला था वो पूरा ऐसा गया कि उनके ज़माने में चाइल्डहुड मतलब एक रियल एन्जॉयमेंट था. अब वो इतना रह नहीं गया है. अभी ये अपने फ्लैट कल्चर के अंदर रहना और ये करियरिस्टिक सब बातें करना, घर में आके होमवर्क के नाम से एक ही जगह रहना, और ग्राउंड से संबंध पूरा टूट जाना मैदान से, तो ये बातें इम्यूनिटी से बहुत मतलब करती है. तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये मेरी पूरे जनरेशन की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, बट वट एवर वी अचीव ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, एंड हमें उसका बहुत कभी कॉस्ट आज देना पड़ रहा है कि इम्यूनिटी जो है हमारी जनरेशन की वो बहुत स्ट्रांग है. और इसका एक ही कारण जो है वो ग्राउंड प्ले है, मैदान के साथ खेलना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी के साथ ताल्लुक़ रखना, यही उसका. दूसरी बात मैं बताऊं आपको, तो उसका जो ये सब जो ट्रेडिशनल गेम्स जिनको हम बोलेंगे या इंडिजिनस गेम्स बोलेंगे या बचपन के गेम्स बोलेंगे, उनका एक बहुत बड़ा उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर ऑल कलेक्टिव गेम्स, और इसमें कलेक्टिव स्पिरिट बढ़ जाती है. आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में एक्सेंटिज्म बढ़ रहा है, इगोइज्म बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है, लोनलीनेस बढ़ रहा है. ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एडजस्टिंग नेचर, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट,
ये बातें आज सिखानी पड़ती है, उसके लिए एमबीए करना पड़ता है। लेकिन हमारे बचपन में ये जो गेम्स थे, उसमें ये सब बातें निहित थी। दे वर ऑल बाय डिफॉल्ट, उसमें सब ये बातें रहती थी। तो ये उसका दूसरा बेनिफिट है। और ये दूसरों का सुनना, दूसरे की बात सुनना, दूसरों की बात मानना, इन रियल सेंस, जैसा आपने बताया, आपने मुझे सवाल किया कि क्या आपने गिल्ली डंडा सुना है। मैं बोलूं आपको, these are in real sense the national games. They were played at certain time and they are also played at this time in most of the parts of India. So it is basically unity in diversity. नाम अलग अलग हो सकता है, आप उसको गिल्ली डंडा बोल सकते हैं, हम उसको कोइंडे बाल बोलेंगे हमारी कोंकणी में। हर एक भाषा के अनुसार, प्रदेश के अनुसार उसका नाम बदल जाएगा, लेकिन उसका उसका जो स्वरूप है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका जो कोर्ट है, उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो तरीका है आउट करने का या खिलाड़ी को बाहर निकालने का, वो सभी जगह आपको सेम मिलेगा। तो दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उसमें वैल्यूज जो है वो इम्बाइब्ड है, उसकी जरूरत बाहर से डालने की नहीं है। और एक बात, जो तीसरी बात मैं कहूँ इन गेम्स के बारे में, तो ये सब गेम्स डेडली नहीं है। आज जिसको हम, या क्रिकेट हो या और किसी भी गेम हो, मैं किसी को ऊपर दोषारोप नहीं करता, लेकिन जो डेडलीनेस है उनमें, कि मैं डू और डाई का स्पिरिट इन गेम में लगता है। उसके लिए मैं नशा करूं, उसके लिए मैं कुछ भी करूं, पैसे दाव पे लगाऊं या कुछ भी करूं, लेकिन मैं उसमें जीत हासिल करूं। ये जो डेडलीनेस है, वो डेडलीनेस इन गेम्स में नहीं था। इसमें रियल टीम स्पिरिट था, स्पोर्ट्समैनशिप थी। और वो स्पोर्ट्समैनशिप के कारण ही वो गेम्स जो है ना, कितने भी हम खेलें, उसमें से कोई ना मन की थकावट, ना शरीर की थकावट, और ना पर्सनालिटी का कोई कैच उसमें आ जाता। तो बेसिकली कैलोरीज लूज करना वगैरह सब एक फिजिकल बात बन गई, लेकिन मन को शांति, मन को समाधान मिलना, और सबके साथ खेलने से कलेक्टिव स्पिरिट उसमें से डेवलप हो जाना, ये बातें जो उसमें निहित थी, वो मुझे लगता है कि उसका आकर्षण बिंदु है। बट जैसे आपने सर ये गेम्स के बारे में आप जितना बता रहे हो, ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में, मैंने ये जैसे आपके इंट्रोडक्शन में भी बोला था दैट आप राइटर भी हो बुक गोरंतल पारंपरिक खेल के। सर उसमें भी मैंने इस जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था, जब मैं ये क्वेश्चंस एंड ऑल में सोच रहा था मैं आपको क्या पूछूं, तो वो बुक में भी कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिशनल जो अपने स्पोर्ट्स है उसके बारे में आपने डिटेल्स में बताया है। तो सर मुझे वो थोड़ा डिटेल में समझना है आपसे, क्योंकि एक रीड करना और एक आपसे ही सुनना, एक राइटर से ही सुनना, और डिफरेंस हो जाता है। तो हमारी ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी प्लीज थोड़ा आप डिटेल में समझा सकते हो वो ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में जो आपने बुक में मेंशन किया है। Yeah, definitely, Vishal. It is very difficult to say about a book written of 150 pages, इन which, शॉर्ट। yeah, definitely, but and which covers games of around 60 traditional games of Goa played in Goa, and I think they will be very common to throughout the India. And why India? Common to entire Asia maybe. जहाँ जहाँ ये कल्चर और सिविलाइजेशनल सिमिलैरिटीज है, उन सब कल्चर्स में और सिविलाइजेशंस में ये गेम तो खेली जा सकती है। तो जस्ट आई सेड कि आई हैव कंपाइल्ड अराउंड 60 गेम्स। आई हैव ट्राई टू गिव देयर रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट मेजरमेंट्स, their players, their types of players, the procedure of playing the game, procedure of winning or losing the game, और सब बातें उसमें की गई है। As I told you just now, these are all healthy games, and healthy in the sense both mentally healthy as well as physically healthy. तो आपको तंदुरुस्त रखने वाले ये सब गेम्स हैं। वैसे तो मुझे ये नाम भी रखना नहीं था ट्रेडिशनल, उसको मैंने लिखा है जैसा आपने उसका जिक्र किया, गोयातले पारंपरिक खेल, मतलब गोवा का पारंपरिक खेल। तो ये ट्रेडिशनल नाम मुझे नहीं रखना था, क्योंकि ट्रेडिशनल बोलने से उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक न्यूनगंड की भावना आती है। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, विशाल, व्हाट इज अपोजिट ऑफ ट्रेडिशनल, यू विल डेफिनेटली से इट इज मॉडर्न। सो जो मॉडर्न नहीं है वो ट्रेडिशनल बन गया। तो ऐसा तो भाव अपने मन में नहीं आना चाहिए। ट्रेडिशनल ऑफ कोर्स। मतलब हम, या
हमारी बचपन से हम जो खेलते आ रहे हैं उसके हम ट्रेडिशनल उसको बोलेंगे, परंपरागत जो खेल है। लेकिन उसका एंटीनिम तो मॉडर्न नहीं है और वेस्टर्न तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो मन में आना ही चाहिए। और उसको दूसरा शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, इंडिजिनस, वो मुझे बहुत पसंद है। देशी, स्वदेशी खेल, ये सब हमारे देश में पैदा हुए। और जब हमारे देश में पैदा हुए, वो कोई आकाश से गिरे नहीं ना, हमारे ही पुरखों ने उनका निर्माण किया। हमारे गोवा में एक फ्रांसिस लुइस गोमिश नाम के एक विचारवंत और फ्रीडम फाइटर होके गए। He used to say, I belong to the country which has produced Ramayana and Mahabharata and which has produced chess, the one which has taught philosophy out of poetry, and the other, that is chess, which has taught us politics from the sports. ऐसा उनका वक्तव्य था उस जमाने का। तो चेस का निर्माण इस देश में हुआ, बुद्धिबल का, जिसने खेल के माध्यम से हमें राजनीति सिखाई, ऐसा उनका कहना था। तो ये सब गेम्स जो है, ये बुद्धि के गेम्स भी है, खाली ये शरीर के व्यायाम के लिए, कसरत के लिए बनाए हुए गेम्स नहीं है। और उनके लिए जगह बहुत कम लगती है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, उनके लिए अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट्स आर स्कैर्स, वेरी रेयर, ज़्यादा कुछ लगता नहीं। मुझे तो याद है जब क्रिकेट की शुरुआत हमारे देश में हुई, आपने तो बनियन ट्री देखा होगा। तो बनियन ट्री के जो ब्रांचेस ऊपर से नीचे आते हैं, वो हम तोड़ते थे और उसके बेड बनाते थे। एंड ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड वी यूज्ड टू प्ले विद द बॉल्स। बेल का आपको झाड़ मालूम है, जो शंकर पर, भगवान शंकर पर हम हाँ, बेल हाँ, चढ़ाते हैं, तो हाँ, उसका एक फल रहता है, वो सॉफ्ट रहता है बहुत, आपने कभी देखा होगा शायद। तो उस बेल के फल से हम क्रिकेट खेलते थे बचपन में। और ये बनियन ट्री का बैट, तो ऐसे उसको इन्वेस्टमेंट तो कुछ लगता ही नहीं, ऐसे ये गेम्स है, इसलिए उनको स्वदेशी इस नाम से हम पुकार सकते हैं। अभी उनमें से कुछ खेल जैसे आपको भी मालूम है, जैसे आपने बोला गिल्ली डंडा या कंचों का खेल, हाँ, में भी कंचों का खेल जो है उसका निर्माण सीमेंट की इन्वेंशन होने के बाद ही किया होगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादातर हम सीमेंट के बॉल्स लेते थे, मार्बल्स लेते थे, और उसके पहले कांच के मार्बल, उसलिए कांचा भी कहते उसको कई भागों में देशों में। तो ये सब हम उसमें खेलते थे और इतनी मजा उसमें आती थी। बारिश में खेले जाने वाले खेल अलग थे, समर में खेले जाने वाले खेल अलग थे। और अभी भी है, बहुत गांव में अभी भी ये सब चलता है बच्चों के लिए, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज के लिए एक साथ खेलने के खेल अलग थे, खाली एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स वृत्त का खेल होगा या पीसेस ऑफ ग्लासेस का खेल होगा, ऐसे उनके लिए अलग से खेल रहते थे। और ये, और एक बात मैं बताना आपको चाहता हूँ ऐसे कि मोस्ट ऑफ द प्लेस, at least in Goa, I don't know about other places, but there should be also, like golf. This is a beautiful game which is played in Goa during the time of the harvest festival, that is now Falgun, month of Falgun. उसमें ऐसा होता है कि जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जब लोगों को कुछ काम नहीं होता, घर में बहुत धान आता है, तब ऐसी आनंद व्यक्त करने का, खुशी व्यक्त करने का माहौल होता है, तब ये खेल लोग खेलते हैं। So most of our games are connected either with religion or they are connected with the season. मतलब सीजन कौन सा है, हार्वेस्टिंग का है तो हार्वेस्टिंग के साथ अलग खेल रहेंगे, ऐसा उनका मामला है। और सम गेम्स आर देयर इंडोर गेम्स, लाइक ताश का खेल है, यू मस्ट बी नोइंग द गेम्स लाइक लूडो, जो आज लूडो हम खेलते हैं, उसके तरह के अनेक खेल हम खेलते आ रहे हैं, आज भी बहुत उसमें पॉपुलराइजेशन हो गया है। जरूरत क्या है कि ये सब खेलों की मार्केटिंग होने की जरूरत है। आज इन खेलों की मार्केटिंग न होने के बजाय होने से ये खेल पीछे पड़ गए। जैसे आज कबड्डी आगे आ गया, खो खो आगे आ गया, नेशनल पे आ गया, इंटरनेशनल पे आ गया, वैसे बहुत ऐसे खेल है जो आ सकते हैं आगे, लेकिन उनकी प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन साइंटिफिकली लिखनी चाहिए किसी ने, उसका कोड का मेजरमेंट किसी ने करना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। जब उसके ऊपर रिसर्च होगा तब डेफिनेटली ये सब खेल
इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आज हमारा योगा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट हो गया, उसी तरह देर आर मेनी, आई विल नॉट से ओल्ड इज गोल्ड, आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन कि जो कुछ पुराना है वो स्वर्णमय है, ऐसे 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 ओपिनियन का मैं नहीं हूँ. बट most of the games, if they are marketed well and if they are researched well, they can be popularized at the national level, because at the international level also, because people need जो आपको ट्रैंक्विलिटी देगा, the games which will give you tranquility of mind, people will appreciate, people will accept, and people will start playing the games. सर तो जैसे अभी आपने सो सॉरी ये भी जस्ट मेरे माइंड में आया, जैसे अभी आपने एक ये गेम के बारे में बताया था ना, एक सिर्फ गोवा में नहीं बड़ी हर जगह होना चाहिए हार्वेस्टिंग वाला, जहाँ पे सारे, तो वो गेम क्या था जस्ट इन डिटेल, कि वो क्या गेम खेलते हैं वहाँ पे जब वो In धान fact, आता है, जब आनंद वो yeah, लोग व्यक्त करते हैं. this is a very unique game which is played in most of the parts of Gujarat and maybe Goa. Maybe we got the tradition of that from Gujarat only. From the it is from Gopa play. Gopa means the shepherds. तो ये जो परंपरा है उसमें एक हॉरिजॉन्टल दंडी बनाई जाती है ऐसी, ओके. और उसको अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग की साड़ियाँ, आजकल तो साड़ियाँ होती है इसलिए साड़ियाँ बनवाते हैं, पहले दिन उसको रस्सियाँ बांधी जाती थी ऐसी अलग अलग रंग की. मतलब आप जो कॉमन कलर्स आपको नेचर में मिलेंगे, उस वक्त तो ऑयल पेंट है नहीं थे, तो जो कुछ कलर्स आपको नेचर में मिलते हैं, जैसे हल्दी का कलर हो, लाल कलर हो, ऐसे जो कोई आपको मिलते हैं, उसमें से रस्सियाँ बनाई जाती थी अलग अलग रंग की, और ऐसी रस्सियाँ छोड़ी जाती थी. फिर एक एक रस्सी एक एक आदमी अपने हाथ में लेगा और वाद्य बजने लगेंगे, देयर विल बी रिदमिक प्ले होगा उसका, और हर एक के हाथ में अपने रंग की डोरी होगी, रज्जू होगा, आज साड़ी होगी, और वो दौड़ने लगेंगे, बहुत प्रकार के वो डांस करेंगे अंदर से, और वो पूरी डोरी जो है जैसी चींटी होती है महिलाओं की, वैसी चींटी करके उसको लाएंगे, जोड़ेंगे उसको डांस के हिसाब से ही. वेरी कैलकुलेटेड गेम, आई मीन उसके लिए बहुत स्किल लगता है. और फिर डांस शुरू होगा उल्टा, जैसा वो नाचे थे और ये पूरा रस्सी ऐसी बांध दी थी, अभी उल्टा डांस होगा और एक एक रस्सी छूटती जाएगी, और फिर एक बार जैसा पुरानी रचना थी उसके अनुसार रचना बन जाएगी. तो दिस एंड इज कॉल्ड गोफ. ऐसे 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 स्पोर्ट्स सर हमें हम यूथ को नॉलेज होना चाहिए, एंड थैंक्स टू यू दैट ये पहली बार तो मैंने खुद ने सुनी. अगर चलो वो तो ठीक है, गिल्ली डंडा एंड ऑल नाम अलग हो सकते हैं, बट ये भी आई थिंक सो हमारे इंडिया, हमारी ऑडियंस और हमारे यूथ को पता चलना चाहिए कि ऐसी भी गेम्स होती है जहाँ पे आप एंटरटेन भी हो सकते हो, एंड प्लस तो आपकी बॉडी भी फिट रहती है. जैसे आपने चेस का भी बोला, चेस इज ऑल्सो वेरी गुड गेम फॉर आवर मेंटल हेल्थ. हमेशा बॉडी हेल्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट मेंटल हेल्थ भी होती है. और सर अभी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप सर मुझे लग रहा है आप कॉलेज में ही अभी बैठे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, इन योर ऑफिस. बिकॉज तो एट होम जैसे आई एम मैंने नॉट ऑडियंस गेटिंग प्रॉपर सिग्नल. तो मुझे हमारी यहाँ, ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा that sir is also the principal of a college, and sir, like you are in a college right now, my first question regarding your this job would be, how do you promote sports in your college, like as a principal? yeah, in fact, I have joined this college only a year before, not even a year, 9-10 months before, as a principal. Before that, I served as a lecturer, a professor in Konkani for 31 years. So, although sports is not my area, but I have always loved sports. In fact, after I wrote this book in Konkani language, many other writers were inspired to write many more books on sports. The sports which I had not covered also, they tried to cover it. सो मैंने तो इंस्पिरेशन खेलने वालों को दिया है, नॉट मे बी बाय प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, एज आई टोल्ड आई एम नॉट अ स्पोर्ट्समैन, बट डेफिनेटली by writing a book, by researching the area which is unexploited, which is unexplored, especially ऐसे खेल जो आज लुप्त होते जा रहे हैं, they have been extinct today,
एंड दे आर नो मोर प्लेड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसे बहुत गेम्स हमने ढूंढ निकाले, उसके रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज है, जहाँ कहीं उन्होंने लिखे होंगे, वहाँ से हमने ढूंढ निकाले, जिनको आज वो मालूम है। ऐसे बुजुर्गों से हम उनकी जानकारी प्राप्त की, रिसर्च किया उसके ऊपर, और ये पुस्तक जो है वो। उसके बाद गोवा में ऐसे बहुत महोत्सव हुए हैं, फेस्टिवल्स हुए हैं, जहाँ लोगों ने इन ट्रेडिशनल गेम्स को कंपटीशन के रूप में वहाँ खेलने का प्रयास किया है। आई विल टेक नेम ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, आदर्श सेवा संघ इन काडकोण। इफ यू हैपन टू visit Goa somewhere in December, please do visit this festival, which has all these traditional games played in the form of a competition. When it is ऐसे held? ही नहीं, usually in December. December. Okay. Yeah. So you please join for this function, and we'll be able to see how these traditional games can be popularized among the youth of the today's generation. And sir, like the way you said right now, जैसे आप प्रमोट भी कर रहे हो बुक के ऊपर, आपने खेल के ऊपर बुक भी पूरा बनाया है, लिखा है, अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। डू यू स्टिल प्ले स्पोर्ट लाइक राइट नाउ इन टुडेज टाइम, लाइक पास्ट में? अभी समझो एक हफ्ते पहले की बात करो, ये हफ्ते में आपने कोई गेम खेली? आजकल हमारा स्पोर्ट्स खेलना मतलब वॉकिंग, जो मॉर्निंग वॉक हम करते हैं, वही हमारा स्पोर्ट्स से जुड़ाव अभी तक अब तक रहे। दूसरा खेल जो हम साल में 3 या 4 बार खेलते हैं, वो ताश का खेल है। जब कभी शादी होती है हमारी किसी रिलेशन के घर में, तब हम उसकी अगली या पहली रात हम उनके घर में जाते हैं रहने के लिए, व्यवस्था के लिए। तो वो जो रात निभानी पड़ती है, उस रात में ताश का खेल होता है। तो वी एंजॉय दिस प्लेइंग कार्ड्स। यही तो सर, खेल से अब ताल्लुक बचा है। बाकी ताश का खेल तो मेंटल प्रेशर देता है ना, लॉस होता है तब। दोनों है, जैसा आप समझे उसमें है। इट इज योर पर्सपेक्टिव टू लुक एट अ पर्टिकुलर गेम। वैसे कोई भी गेम, यदि मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग इवन क्रिकेट ऑल्सो, वो ज्यादा क्या है, इंडिविजुअल सेंट्रिक है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कलेक्टिविटी है तो है ही ना। पूरी टीम अच्छी रहेगी तो ही उसकी जीत होगी, एक आदमी अच्छा रहने से नहीं जीत होगी ना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस मिट्टी में खेल पैदा हुए, उस मिट्टी से उसका ताल्लुक होता है। अभी क्रिकेट हमारे देश में क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि हम इतना एक्सेंट्रिक होना नहीं चाहते। हमारा अप्रोच जो है वो कलेक्टिव अप्रोच है, हमारे देश की संस्कृति का अप्रोच। वेरेज उनका अप्रोच जो है वेस्टर्न का, वो इंडिविजुअलिस्टिक का है। तो वहाँ इंडिविजुअल विक्ट्री को समाज में अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कलेक्टिव विक्ट्री को माना जाता है। तो मेरे हिसाब से जो गेम्स का उगम है वो मिट्टी से बहुत जुड़ा हुआ है। तो जहाँ किस रीजन में कौन से गेम्स पैदा होंगे या पॉपुलर होंगे, इट ऑल डिपेंड्स on the culture and civilization of that land. Sir, last but not least, before we end the episode, मैंने आपका बहुत पहले से टाइम ले लिया, एंड मुझे बहुत मजा भी आ रहा है, मुझे और क्वेश्चंस भी पूछने हैं, बट मेरे पास भी टाइम लिमिट है सर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू मोटिवेट आवर ऑडियंस, हाउ वुड यू मोटिवेट आवर यूथ, एंड whosoever is looking at this video right now, आप उनको कैसे इंस्पायर करोगे स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेने, या तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए? एनी ऑफ दिस टू? The National Education Policy 2020 encourages all these what we used to call earlier as co-curricular or extracurricular activities. Now they are on par with academics. उनमें कोई भेदभाव अभी नहीं है। NEP 2020 में there is no discrimination between academics, sports, कल्चरल एंड ऑल अदर सिमिलर एक्टिविटीज। तो जिसको स्पोर्ट्स में करियर करना है, उसमें अभी कोई बाधा नहीं है। उसके लिए बहुत से प्रावधान रखे गए हुए हैं। क्रेडिट्स का मामला है, जितने क्रेडिट्स उसने लिए हैं वो क्रेडिट उसके अकाउंट पे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए इतना बड़ा अवसर अब तक शिक्षा पद्धति में नहीं था, एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था, अब वो आ चुका है। So there are ample opportunities, the state government, the central government, there are various schemes, there are various scholarships
In Goa also there are various types of sports scholarship which a student can avail. कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त हम उसका अटेंडेंस का भी इतना उसको स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे. इफ ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ आवर कॉलेज वी विल डेफिनेटली एनकरेज हिम फॉर स्पोर्ट्स. और उसके लिए ज़्यादा क्लासेस भी रखेंगे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंटरी वर्क भी होगा, जैसे उसको हम खेलने के लिए TADA की प्रावधान करेंगे, उसके ड्रेस का प्रावधान करेंगे. ये सब फैसिलिटीज आजकल है. तो पहले जैसे मेंटालिटी और माइंडसेट अभी नहीं है खेलों के बारे में. तो कॉलेज में पढ़ते समय आप पढ़ते पढ़ते आप खेल खेल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो ये इस अवसर का आज फायदा उठाने की जरूरत है. मेरी तरफ से I always encourage sports in my college. May it be kabaddi, may it be any game which is organized at the college level, class level, or at the state level. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल there are many facilities which we are not which we are not exploited so far. अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्टेट स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ हमने यदि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं. और एक बात जो मुझे कहनी है कि आजकल हम जैसे नॉर्मल मैदानी खेल जो है उसके लिए तो करेंगे ही, बट फॉर एडवेंचरस गेम्स ऑल्सो वी हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट्स लाइक रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग. ऐसे जो गेम्स है ना, उसमें से आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसमें उसका स्वाभिमान और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है. ऐसे भी गेम्स हमें करने चाहिए. In the foreign countries, I have learned from my elderly friends in Goa, big industrialists also, that while the training is going on in the foreign countries, along with the academic studies, they are taught all these adventurous games. जैसे उनको हेलीकॉप्टर से ट्रेनिंग देने के बाद गिराया जाता है और कब वो पैराशूट खोलना है उसकी शिक्षा उन्हें दी जाती है. इससे क्या होगा, अभी मुझे बोलो आप कि जो आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला है आगे, उसको पैराशूट और इसकी शिक्षा क्यों देनी चाहिए? इसलिए देनी चाहिए, जैसा आपने जिक्र किया कि मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को. तो समझो उसका 1 करोड़ का या 2 करोड़ का बिजनेस कल खराब हो गया, उसमें कुछ खराबी आ गई और वो बैंकरप्ट हो गया, तो उस बुरी हालत में भी खड़ा रहने की शक्ति, ताकत उसको कौन दे सकता है? उसका माइंड दे सकता है. तो वो माइंड को मजबूत करने के लिए खेल की आवश्यकता है. विल पावर, उसके लिए हमने खेल को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत मजा आया. एंड इट वाज लाइक कि इस बार मुझे ऐसा इंटरव्यू लगा ही नहीं दैट मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट एज अ स्टूडेंट एंड एज अ ऐसा मैं लग रहा था दैट एक दोस्त के हिसाब से मैं आपको सारे सवाल पूछ रहा हूँ. एंड आप हमारी जनरेशन से बहुत यंग हो सर, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है दैट आप हमारी जनरेशन से अलग हो. एंड यू आर स्टिल यंग एंड यू आर, जिस हिसाब से आपने आंसर दिया मुझे बहुत मजा आया एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा. एंड थैंक यू वंस अगेन भूषण सर. और हम दिसंबर में जरूर मिलेंगे फॉर दैट ट्रेडिशनल गेम एंड एज यू हैव इनवाइटेड आई वुड श्योरली बी देयर. एंड इसी के साथ आई लाइक टू टेक अ लीव एंड थैंक यू टू आवर ऑडियंस, टू आवर यूथ. एंड मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में. एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.